Jai Bharat, dear all Advitiyans. So in our last lecture, we discussed about the ribosomes, types of ribosomes and the subunit of ribosomes, which are larger and smaller subunit, as well as when they associate and dissociate in presence of magnesium, and the concentration of magnesium, we can say that having that effect on the association and the dissociation process. How ribosomes is important for the protein synthesis, that also we have discussed. In this lecture, we are going to discuss about the mitochondria, which is very much important organelles, because whatever the metabolic processes from inside the cytoplasm that require huge amount of ATP, right? And the mitochondria is a major source of for that. And one more important thing is that mitochondria is directly related with one of the chapter of physiology, which is a cellular respiration. So सारी डिटेल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. थोड़ा ये लेक्चर जो है वो लंबा रहेगा, वीडियो जो वो लंबा है, बट सारी डिटेल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट. अगर ये आपको ऑर्गेनल समझ में आ गया तो पूरा एक चैप्टर जो है दैट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, दैट वुड बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? चलो, तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट ऑर्गेनल इज माइटोकॉन्ड्रिया. If we talk about the mitochondria, first of all, mitochondria discovered by, or we can say that the observed by a scientist, Kolliker, right, in flight muscles of insect. See, flight muscles required huge amount of energy, and that is why mitochondria is found in more in number, right? Okay, so mitochondria were discovered by Kolliker in flight muscles of insect. Okay, Fleming called them phyla. And that phyla term is because of its structure. It seems to be a filament-like structure, right? And that is why Fleming called them a phyla. Okay. Altman called them bioplast. There was a scientist named Altman who called this mitochondria bioplast, as well as Altman proposed symbiotic theory. Symbiotic theory of mitochondrial origin. Symbiotic theory of mitochondrial origin. But actually this theory is not correct, right? So at present no one accepts this theory. Altman called them bioplast, and Altman also proposed a symbiotic theory. And what does it mean by symbiotic theory? According to the Altman, or we can say that the Altman believed that there is a eukaryotic cell which who engulf the prokaryotic cell. कोई एक eukaryotic cell था, for example WBC, which engulfed the prokaryotic cell, and that is why eukaryotic cell also having a prokaryotic ribosomes. So basically Altman identified the ribosomes which is present inside the mitochondria, right? And as we discussed in an early lecture that in eukaryotic cell, mitochondria and the chloroplast, these are the two organelles which has ribosomes, and that ribosomes are a prokaryotic type, right? And that is why Altman believed that eukaryotic cell engulf the prokaryotic cell, and that is because in eukaryotic cell some organelles have what? Prokaryotic ribosomes. But although this theory is not accepted, right? Okay, so Altman called them bioplast. Then term mitochondria was given by Benda. So first time the term mitochondria was given by Benda, and also known as plasmosome. Mitochondria is also known as plasmosome and vermiculus and plastidomitochondria, right? Okay, so these are the other name for mitochondria. Okay, now they are the largest organelle in animal, right? If we talk about the animal cell, we can say that mitochondria is the largest organelle, and in case of plant cell it is third largest organelle, because in plant cell the largest one is vacuole, right? So they are the largest organelle in animal cell and third largest organelle in plant cell. Okay, this is also a important one. Mitochondria are found in all eukaryotic cell except what? Mature mammalian RBC. So mitochondria are found in all eukaryotic cell except mature mammalian RBC. See, in early part of this lecture I said you that mitochondria is related with the cellular respiration, and if mitochondria is not present inside the mature mammalian RBC, then how this cell can perform respiration? So here you need to remember one thing. See, the function of RBC is what? Function of RBC to deliver oxygen in a tissue cell, as well as it is also related with the exchange of both the gases, that is O2 and CO2, right?
but mature mammalian RBC itself perform anaerobic respiration. So RBC deliver oxygen to all the cells of the body, right, for the aerobic respiration, but RBC itself perform what? anaerobic respiration. वो खुद को सबको ऑक्सीजन डिलीवर कर रहा है, लेकिन मैच्योर मैमेलियन आरबीसी खुद क्या कर रहा है? इट परफॉर्म एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. तो ये चीज याद रखना, और इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यहाँ पे मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में नहीं है, इट इज एब्सेंट, राइट. Okay, smallest mitochondria are found in yeast. As we know that yeast is the only unicellular fungi, right? This is the unicellular fungi, and it has smallest mitochondria. The size is 1 cubic micrometer, right? Which is very much smaller. Okay, largest mitochondria are found in oocytes of Rana pipenus. Rana pipenus is we can say that it is a species of a frog which is found in the northern area of the planet, right? So it is oocytes. Oocytes means what? It is a female, we can say that the female gamete. So oocyte of Rana pipenus has 20 to 40 micrometer, right? And this Rana pipenus form a big egg according to the size of the animal. ठीक है, उससे बहुत ही उसका egg जो कैसा है? बड़ा. And if egg is larger, that means it has more yolk in it. और yolk कैसे form होता है? By the process of vitalogenesis. And that vitalogenesis process required what? Huge amount of energy. And for huge amount of energy, we required what? Mitochondria, right? And that is because mitochondria is largest. Only one mitochondria is found in Microsterias. Microsterias is nothing but the unicellular alga. Same way Trypanosoma, Chlorella, Chlamydomonas and Microsomonas. These all are the alga, right, in which there is only one mitochondria per cell. See, the number of mitochondria is depending upon the activity which is performed by the cell. For example, if you talk about the muscles, right, muscles perform what? Contraction and relaxation process, and that contraction and relaxation process required huge amount of energy. So that cell required more amount of mitochondria. ठीक है, तो उसमें mitochondria कैसे होंगे? ज़्यादा होंगे. Okay, maximum number of mitochondria, that is 5 lakh per cell, which is found in the flight muscles of an insect. और इसीलिए देखिए कि फ्लाइट मसल जो है उसी में सबसे पहले कॉलिकर ने ये डिस्कवर किए थे, क्या? माइटोकॉन्ड्रिया. वो बहुत ही ह्यूज नंबर थे उसके. पर सेल कितने होते हैं? 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया, राइट. ओके, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन जाइंट अमीबा विच इज ऑल्सो नोन एज कैओस कैओस. जाइंट अमीबा को दूसरा क्या बोलेंगे हम? कैओस कैओस. एंड इट इज अराउंड, वी कैन से दैट उसमें कितने नंबर होते हैं? जाइंट अमीबा हैज 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल. 50,000 mitochondria per cell. In human sperm, it is 25 mitochondria per cell. देखिए, human sperm जो है उसका काम क्या है? वो जो है sperm is a movable, ठीक है, and that will travel towards the, we can say that the vagina and then after the uterus, ठीक है. तो उसका मतलब ये है. और fallopian tube में क्या होता है? fallopian tube में fertilization होता है. तो mitochondria अगर होगा तो ही जो tail part जो है that will movable and sperm can travel. तो इसलिए ह्यूमन स्पर्म में कितना है? 25 माइटोकॉन्ड्रिया. किडनी सेल हैज 300 to 400 माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज किडनी की अगर हम बात करें तो किडनी में जो फंक्शनल यूनिट है, इट इज अ नेफ्रॉन, राइट. एंड दैट नेफ्रॉन मेड अप ऑफ व्हाट? Bowman capsule, then proximal convoluted tubule, then Henle's loop, distal convoluted tubule, and lastly collecting duct. Out of that, the proximal convoluted tubule is related with the active absorption, and whenever there is a active absorption, it required what? Expenditure of ATP, right? So in kidney cell, 300 to 400 mitochondria are there. In liver cell has means hepatocyte. Liver cell means what? Hepatocytes. That has around 1,000 to 1,600, we can say that, mitochondria. Because see, liver is a chemical factory, right? So liver cell perform, we can say that a huge process of metabolic processes. तो सारे जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन या फिर कन्वर्जन सिंपल में से कॉम्प्लेक्स में, या फिर कॉम्प्लेक्स का डिकम्पोजिशन, वो सब कहाँ पे होता है? इट इज फाउंड इन द लिवर सेल. और इसलिए लिवर सेल ऑल्सो रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, लोकेशन metabolically active place like base of flagellum. So mitochondria is found
in a cell where the metabolically active process takes place, right? For example, here we are going to take one example, that is flagellum. Flagellum is related with what? Movement and locomotion, right? So at the base of flagella there is a mitochondria. If we talk about the origin of mitochondria, mitochondria are self-duplicating organelle. See, if we talk about the mitochondria, as we know that the mitochondria has two membrane, right? This one is the outer membrane, and inside that outer membrane is continuous, right, without folding, and this one is the inner membrane. Okay, so now two membrane are present in mitochondria, outer and inner membrane. Inside the inner membrane, that part is known as matrix. That part is known as matrix, and this matrix has a ribosomes. That matrix has what? Ribosomes. Okay, so here we have, suppose, ribosomes. In case of mammalian mitochondria, right, the ribosome would be 55S. कौन से टाइप के ribosomes होंगे? 55S. इसके अलावा inside this matrix, mitochondria also has a genetic material, right, and that is DNA. So basically it is an organelle, but still it has what? It has its own DNA or genetic material, as well as it has its own protein engine, right? Mitochondria के पास खुद का genetic material है, as well as it also having a engine of cell, that is a ribosomes, which is related with the protein synthesis. So despite of the cell division, within the cell mitochondria itself can duplicate without the cell division. Cell division अगर नहीं हो रहा है तो भी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो खुद से क्या हो सकता है? डुप्लीकेट हो सकता है, बिकॉज डुप्लीकेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? एक जेनेटिक रेप्लिकेशन होना चाहिए और दूसरा प्रोटीन बनने चाहिए, तो ही वो एंजाइम जो बना पाएंगे, राइट? और इसलिए अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनल्स एंड दे कैन replicate on their own as they have their own DNA and ribosome. उसके पास खुद के क्या है? DNA है, खुद के क्या है? राइबोसोम है, ठीक है? तो जेनेटिक मटेरियल जो है उसका डबलिंग भी हो जाएगा और रिबोसोम जो है उसके लिए प्रोटीन भी प्रोवाइड कर देंगे, विच लेटर ऑन एक्ट एज अ एंजाइम टू लीड द मेटाबॉलिक प्रोसेस. और इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इट इज ऑल्सो नोन एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स. क्या उसको बोल सकते हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स. व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स? बिकॉज डिस्पाइट ऑफ सेल डिवीजन within the single cell, mitochondria itself can replicate because mitochondria has DNA as well as ribosomes. ठीक है, तो इसलिए उसको हम क्या बोल सकते हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल. चलिए, लाइफ स्पैन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज अबाउट 5 to 10 days. ठीक है, और इसलिए देखिए विदिन 5 to 10 days ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया विल बी वाइप आउट एंड इंस्टेड ऑफ दैट अ न्यू माइटोकॉन्ड्रिया विल बी फॉर्म. तो ये तो तभी हो सकता है कि जब वो कैसे हैं? सेल्फ रेप्लिकेट, और इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स. ओके, केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच वाज गिवन बाय द कोहेन, अकॉर्डिंग टू दैट माइटोकॉन्ड्रिया हैज 65 to 70% प्रोटीन. मतलब बहुत ही ज्यादा इस ऑर्गेनल में क्या है? प्रोटीन. एंड लिपिड कंटेंट इज 25 to 30%. ठीक है, प्रोटीन कंटेंट कितना है? 65 to 70% एंड लिपिड कंटेंट 25 to 30. ये 25 to 30% जो लिपिड है उसमें 90% ऑफ फॉस्फोलिपिड और 10% जो है कौन सा है? कोलेस्ट्रॉल एंड विटामिन ई. ओके, टोटल अगर हम बात करें तो 65 to 70% composed of protein and 25 to 30 only lipid, right? और वो 25 to 30% जो उसमें 90% क्या है? फॉस्फोलिपिड एंड रिमेनिंग 10% कंट्रीब्यूट बाय द कोलेस्ट्रॉल एंड विटामिन ई. विटामिन ई जो है दैट विल एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट एजेंट. वो क्या है? इट इज अ एंटी ऑक्सीडेंट एजेंट. वो क्या है? एंटीऑक्सीडेंट एजेंट है. और इसलिए देखिए, अगर वो एंटीऑक्सीडेंट एजेंट है तो उसका मतलब ये है कि जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जो है उसको किस में रखेगा? कंट्रोल में रखेगा. ठीक है, मेंटेन करेगा. ओके, चलिए, तो ये हुआ केमिकल कंपोजिशन. माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. अभी हमने देखा आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड. Okay, and it is a semi-autonomous organelle. Why it is called semi-autonomous organelle? Because it can replicate itself, ठीक है, without cell division. Okay, तो यहाँ पे हमने वापस डबल मेम्ब्रेन जो बनाते हैं
ये सपोज आउटर मेम्ब्रेन हुआ, दिस इज द outer membrane which is a smoother one, right, do not shows any kind of fold, and this one is the inner membrane. ये जो है वो क्या है, it is a inner membrane, right. चलिए, तो दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. यहां पे एक चीज आप याद रखिए कि जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट हैज मोर लिपिड कंटेंट एंड लेस प्रोटीन कंटेंट. वापस ये जो ब्लैक पेन से मैंने बनाया है वो क्या है, इट इज अ आउटर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन में लिपिड कंटेंट कैसा है, ज्यादा. प्रोटीन कंटेंट कैसा है, कम. जब लिपिड कंटेंट ज्यादा होगा, प्रोटीन कंटेंट कम होगा, दैट मेम्ब्रेन एक्ट एज अ परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो we can say that the mitochondria is made up of double membrane structure. Outer membrane is smooth and that outer membrane has more amount of lipid and less amount of protein, and that is why it is permeable. Okay, against it, inner membrane is folded. Inner membrane has more amount of protein, less amount of lipid. More amount of protein, less amount of lipid, and that is why inner membrane is act as what, selective permeable membrane. ठीक है, तो outer membrane में लिपिड ज्यादा है, प्रोटीन कम है, तो वो परमिएबल है. इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन ज्यादा है, लिपिड कम है, that is why it act as a selective permeable membrane. Okay, so the outer membrane is smooth and permeable. It has less protein and more phospholipid. outer membrane में प्रोटीन कैसे हैं, लेस, लिपिड कैसे हैं, ज्यादा. और मेन फॉस्फोलिपिड जो है दैट इज फॉस्फोटाइडल कोलाइन. याद रखना, मेन यहां पे जो लिपिड कंटेंट जो है आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज फॉस्फोटाइडल कोलाइन, एंड दूसरा कौन सा है, कोलेस्टेरॉल. ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन की. इनर मेम्ब्रेन में क्या होगा, फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल होगा. ठीक है, ओके. दूसरी अगर हम बात करें, द इनर मेम्ब्रेन हैज फोल्ड, और वो फोल्ड को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टा. अगर सिंगल है तो, मैनी है दैट इज क्रिस्टी, प्लूरल, राइट. सो द इनर मेम्ब्रेन हैज फोल्ड एंड इज सेमी परमिएबल और सिलेक्टिव परमिएबल. मोस्टली इट एक्ट एज अ सिलेक्टिव परमिएबल. ओके, इट हैज मोर प्रोटीन. इनर मेम्ब्रेन में ज्यादा क्या है, प्रोटीन, एंड लेस अमाउंट ऑफ फॉस्फोलिपिड. और फॉस्फोलिपिड जो कौन से होंगे, फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल. तो अगर हम दोनों मेम्ब्रेन की बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन हैज मोर लिपिड, लेस प्रोटीन, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ परमिएबल. लिपिड का टाइप कौन सा है, फॉस्फोटाइडल कोलाइन एंड कोलेस्ट्रॉल आउटर मेम्ब्रेन में. इनर मेम्ब्रेन जो है दैट हैज मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, लेस अमाउंट ऑफ लिपिड, और वहां पे लिपिड जो है कौन सा है, फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल. ठीक है, चलिए. द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन called C phase or cytosol phase, and the inner surface is called M phase or mitochondrial phase. देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमको ध्यान से ये देखना पड़ेगा. देखिए, ये इनर मेम्ब्रेन है, रेड पार्ट जो क्या है, इनर मेम्ब्रेन. दैट इनर मेम्ब्रेन हैज टू सरफेस. ठीक है, एक जो है वो ये वाला सरफेस है, दिस इज द आउटर सरफेस, और ये आउटर सरफेस को हम क्या बोलेंगे, सी फेज या फिर साइटोसॉल फेज, क्योंकि वो कहाँ पे है, टूवर्ड्स द साइटोप्लाज्म. ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ इनर मेम्ब्रेन के दो फेज हैं. एक कौन से, टूवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, इसको हम क्या बोलेंगे, सी फेज. और एक फेज जो है दैट विल रिमेन टूवर्ड्स द मैट्रिक्स, मतलब इनर साइड. ठीक है, तो ये फेज जो हम उसको क्या बोलेंगे, एम फेज. और क्यों हम एम फेज बोल रहे हैं, बिकॉज इट विल रिमेन टूवर्ड्स द मैट्रिक्स साइड. तो इनर सरफेस जो है, सॉरी, इनर मेम्ब्रेन जो है, दैट इनर मेम्ब्रेन हैज टू सरफेस, वन विच विल रिमेन टूवर्ड्स द आउटर मेम्ब्रेन या फिर टूवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, दैट इज सी फेज और साइटोसोल फेज. और एक जो है वो टूवर्ड्स द इनर साइड है, टूवर्ड्स द मैट्रिक्स, दैट इज नोन एज एम फेज और मैट्रिक फेज. चलिए, बिटवीन द आउटर एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, हम दो मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, रेड और ब्लैक, राइट. बिटवीन द आउटर एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, कौन सा, रेड इज द इनर मेम्ब्रेन, ब्लैक इज द आउटर मेम्ब्रेन. इन दोनों के बीच में जो स्पेस है दैट इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. व्हाट इट इज कॉल्ड, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. इट इज आल्सो नोन एज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. उसको क्या बोल सकते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. एंड दैट गैप इज अराउंड 20 to 60 एंगस्ट्रॉम. So between the outer and inner membrane of mitochondria is the perimitochondrial space or intermembrane space, which is 20 to 60 angstrom and filled with less dense matrix. तो यहाँ पे भी matrix तो है but it is less dense.
और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है दैट इज अ डेंस मैट्रिक्स, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन में लिपिड ज्यादा, प्रोटीन कम, लिपिड का टाइप कौन सा, फॉस्फोटाइडल कोलाइन एंड कोलेस्ट्रॉल। इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन ज्यादा, लिपिड कम, लिपिड कौन सा, फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल, ठीक है। इनर और आउटर इन दोनों के बीच में जो स्पेस है दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या फिर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस एंड द साइज ऑफ दैट इज 20 to 60 एंगस्ट्रॉम। दूसरा, इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस सी फेस बिकॉज इट विल रिमेन टुवर्ड्स द साइटोसोल। इनर मेम्ब्रेन की इनर स्पेस विच विल रिमेन टुवर्ड्स द मैट्रिक्स इज नोन एज एम फेस, ठीक है। तो दो मेम्ब्रेन है, बाहर का कंटिन्यूस या फिर स्मूथ, अंदर जो है दैट फॉर्म अ फोल्ड एंड दैट इंडिविजुअल फोल्ड इज नोन एज क्रिस्टा and plural of it is known as cristae, right? चलिए now let us check the diagram of this entire mitochondria. See देखिए जो black pen से बनाया है it is a outer membrane. Outer membrane has more lipid, less protein, and that is why it is permeable. Inner membrane has more protein, less lipid, and it is selective permeable. In case of outer membrane, the lipid is what? Lipid is phosphatidal choline and cholesterol. In case of inner membrane, the lipid is what? Lipid is phosphatidal glycerol. Okay. Between these two membrane, there is a space, right? And that space is known as intermembrane space or perimitochondrial space. And the size of this space is what? 20 to 60 angstrom. See, this is the mitochondria, right? And because of inner membrane, the entire matrix of mitochondria is divided into two chamber. Because of inner membrane, the entire matrix of mitochondria divided into two chamber. One is a chamber between outer and inner membrane. तो ये जो है that is outer chamber, इसको हम क्या बोलेंगे? This is nothing but the outer chamber. किसकी हम बात कर रहे हैं? इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो पार्ट है that is known as, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोल रहे हैं, या फिर क्या बोल रहे हैं? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं? आउटर चैम्बर, ओके। और उसके अलावा जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज इनर चैम्बर, ठीक है। तो जो इनर मेम्ब्रेन है दैट फॉर्म टू चैम्बर, जो उसके बाहर है, और आउटर मेम्ब्रेन के अंदर दैट इज पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, वो क्या बनाएगा? आउटर चैम्बर। और वट एवर द इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, वो पूरा मैट्रिक्स जो है वो क्या फॉर्म करेगा? इनर चैम्बर जो है वो फॉर्म करेगा, ठीक है, ओके। इसके अलावा आप देखिए कि जो इनर मेम्ब्रेन जो है दैट फॉर्म व्हाट? फोल्ड्स। और वो फोल्ड जो कैसे हैं? जो लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस जो है उसके परपेंडिकुलर है, राइट। तो ये जो फोल्ड है दैट इज नोन एज क्रिस्टा एंड दैट क्रिस्टा हैज ऑक्सीजोम। उसके ऊपर क्या है? ऑक्सीजोम, या फिर आप उसको F0 F1 पार्टिकल भी बोल सकते हो। एज वी नो दैट दिस एंटायर स्ट्रक्चर और माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटेड विद द सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। इसके अलावा देखिए कि यहाँ पे एक डीएनए है, और डीएनए जो है उसमें मैंने क्या लिखा है? C and G सीक्वेंस। देखिए डीएनए की अगर हम बात करें देन डीएनए हैज टू काइंड ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर, वन इज A and T एंड द अदर वन इज G and C, ठीक है। A और T के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे? देयर आर टू हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन A and T एंड देयर आर थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन C and G। लेकिन अगर मैं डीएनए में लेकिन अगर मैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करूं देन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हैज मोर दिस सीक्वेंसेस। मतलब G और C सीक्वेंसेस कैसे हैं? ज्यादा। किसमें? डीएनए विच इज फाउंड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। और इसलिए अगर C और G कंपैरेटिवली ये पेयर जो है वो ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू द चारगैफ रूल, वो हम देखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। तो C और G के बीच में जो तीन हाइड्रोजन बॉन्ड है इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रेक बाय गिविंग अ हायर टेम्परेचर। तो इसलिए नॉर्मल डीएनए से ज़्यादा अगर मैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करूं तो उसका डीनेचुरेशन टेम्परेचर जो है वो कैसा होगा? ज़्यादा। ये इजीली ब्रेक नहीं हो सकते। क्यों? बिकॉज G और C सीक्वेंस कैसा है? ज़्यादा। अगर A और T ज़्यादा होते तो वो इजीली ब्रेक हो जाते, बिकॉज A एंड T देयर आर टू हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन दैम, राइट। लेकिन यहाँ पे C और G सीक्वेंसेस जो है वो कैसी है? ज़्यादा। एंड दैट इज वाई द डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैज और रिक्वायर्ड high temperature for the denaturation process. Other than that, inside this matrix there is a ribosomes, और रिबोसोम जो वो नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे होंगे? प्रोकैरियोटिक रिबोसोम्स। तो प्रोकैरियोटिक रिबोसोम मतलब कौन सा है? 70S। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? मैमल्स के माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की। तो उसमें अगर हम बात करें तो उसमें जो रिबोसोम्स होंगे वो कौन से होंगे? 55S।
अब देखिए ये सारा स्ट्रक्चर तो हमने बना लिया, लेकिन एज वी से दैट दिस स्ट्रक्चर इज रिलेटेड विथ वन प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे देखिए ये जो आउटर पार्ट है इट इज नथिंग बट द साइटोप्लाज्म। ये आउटर पार्ट जो है वो क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में जो प्रोसेस होगा वो कौन सा प्रोसेस होगा, ग्लाइकोलिसिस। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि अगर हम बात कर रहे हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन की, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन 3 फेजेस, ठीक है। और वो 3 फेजेस में जो फर्स्ट फेज है दैट इज ग्लाइकोलिसिस। दैट ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्मा in which 1 molecule of glucose converted into 2 molecule of pyruvic acid, that you have already seen a secondary, right, 10th standard में आप पढ़ चुके हो। तो फर्स्ट फेज हो गया ग्लाइकोलिसिस। नाउ द सेकंड फेज which is known as Krebs cycle, that Krebs cycle takes place in the matrix। वो किस में होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, एंड दिस वन इज द सेकंड फेज। वो कौन सा फेज है, सेकंड फेज। एंड द थर्ड फेज which is known as oxidative phosphorylation. What it is called, oxidative phosphorylation. This one is the third phase, and that third phase takes place inside the oxysome. तो अगर हम cellular respiration की बात करें, that cellular respiration takes place in 3 phases. One is glycolysis which occur in the cytoplasma, second is Krebs cycle which will takes place in the matrix of the mitochondria or inner chamber of the mitochondria, and the third phase is oxidative phosphorylation which is related with the oxysome which are present on the surface of what, on the surface of क्रिस्टा, राइट, और इनर मेम्ब्रेन। चलिए, तो ये जो है वो पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का हमने स्ट्रक्चर जो है वो देखा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टा। अब हम जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टा, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टा जो देखते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टा। ओके, नाउ इफ यू ड्रॉ द सिंगल क्रिस्टा, देखिए यहाँ पे मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया, दिस ब्लैक पार्ट इज नथिंग बट द आउटर मेम्ब्रेन। Outer membrane has more amount of lipid and less amount of protein, and that is because it is permeable. Lipid कौन सा है वो हम देख चुके हैं। This red part is nothing but the inner membrane which has more amount of protein, less amount of lipid. और lipid कौन से है, phosphatidylglycerol glycerol, यहाँ पे phosphatidylcholine and cholesterol. Okay, there is a space between these two membrane which is known as intermembrane space or perimitochondrial space, and the area is around 20 to 60 angstrom, and this is also known as outer chamber. What it is called, outer chamber. Okay, whatever inside the membrane or inner membrane is known as inner chamber or matrix of mitochondria where Krebs cycle will takes place. Okay, ये cytoplasmic part है, तो वहाँ पे कौन सा process होगा, glycolysis. Glycolysis is the first phase. Now Krebs cycle is the second phase, और third phase की हम बात करने वाले हैं, that is takes place in the ऑक्सीजोम। ओके, तो यहाँ पे जो है वो एक चीज याद रखो कि ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर चैम्बर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या फिर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और उसकी साइज कितनी है, 20 to 60 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक ऑक्सीजोम बनाया है, राइट। ऑक्सीजोम हैज 3 पार्ट। वन पार्ट इज नोन एज, दिस ऑक्सीजोम हैज 3 पार्ट। वन पार्ट इज नोन एज बेस, सेकेंड पार्ट इज नोन एज स्टॉक, एंड थर्ड पार्ट इज नोन एज हेड। तो एक ऑक्सीजोम मॉलिक्यूल जो है, दैट वन सिंगल ऑक्सीजोम मॉलिक्यूल हैज 3 पार्ट। वन इज बेस, सेकंड इज स्टॉक, एंड द थर्ड वन इज व्हाट, हेड, राइट। बेस इज मेड अप ऑफ F0 पार्ट एंड विच इज अ पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन। देखिए विच इज अ पार्ट ऑफ इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पे देखिए ये जो मैंने बनाया है, देयर इज अ बेस पार्ट, तो बेस जो है इट इज अ पार्ट ऑफ इनर मेम्ब्रेन, राइट। देन देयर इज अ लॉन्ग व्हाट, स्टॉक। So stock is made up of F5 and F6 particle. बेस किससे बना है, F0 पार्टिकल से। स्टॉक किससे बना है, F5 and F6 पार्टिकल से। और हेड जो है वो एंटायर किससे बना है, F1 पार्टिकल से। दिस F1 पार्टिकल एक्ट एज ATPase एंजाइम। वो F1 पार्टिकल कैसे काम करेगा, एज अ ATPase एंजाइम। ओके, अब ये पूरे प्रोसेस जो है उसमें होगा क्या, तो एक चीज जो याद रखो, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ Krebs साइकिल। Krebs साइकिल जो है उसके प्रोडक्ट जो है वो अगर हम यहाँ पे लिखे, दैट इज NADH2 एंड FADH2, राइट। मींस NADH2 का फुल फॉर्म क्या होगा, रिड्यूस निकोटिनिमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, एंड FADH2 का रिड्यूस फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। अगेन रिड्यूस निकोटिनिमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड
FADH2 का reduce flavin adenine dinucleotide. This is nothing but the reducing power. इसको क्या बोलते हैं? reducing power. Okay. ये reducing power जो है NADH2 and FADH2 that release two things. One is 2H plus and the other one is 2 electron. क्या रिलीज करेंगे वो? 2H plus plus 2 electron. Out of that, this 2 electron pass through ETS. वो 2 इलेक्ट्रॉन जो वो कहाँ से पास होंगे? That is pass through ETS. ETS means electron transport system, which is basically a redox chain. वो क्या है? Redox chain, through which the 2 electron will be passed, and whatever the energy is released, that will utilize to pull 2H plus from matrix towards the इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या फिर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर आउटर चैम्बर। तो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन जब यहां से पास होंगे तो ऐसे 3 2H प्लस, अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2, अगर NADH2 का एक मॉलिक्यूल, अगर NADH2 का एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में से पास हुआ तो जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है उससे 2H प्लस जो है उसके 3 मॉलिक्यूल कहां पे पंप करेंगे? मैं पंप बोल रहा हूं। पंप का मतलब ये होता है कि यहां पे कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा? ज्यादा, यहां पे कैसा होगा? कम। ठीक है, तो वो 2H प्लस जो वो यहां पे क्या कर रहे हैं? पंप कर रहे हैं। ओके, सेम वे अगर एक FADH मॉलिक्यूल जो है वो अगर ETS के थ्रू पास हुआ तो फिर जो 2H प्लस रिलीज होंगे दैट वुड बी 2H प्लस। ठीक है, वो कितने 2H प्लस जो अंदर पंप करेगा? 2। तो अगर NADH2 का मॉलिक्यूल अगर किससे पास हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, तो वो 3 2H प्लस जो यहाँ पे पंप करेगा कहाँ पे? फ्रॉम इनर चैम्बर टूवर्ड्स द आउटर चैम्बर या फिर फ्रॉम मैट्रिक्स टूवर्ड्स द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और उससे 2H प्लस जो डंप होते जाएंगे। सेम वे FADH2 अगर पास हुआ तो 2 ऐसे 2H प्लस जो है वो कहाँ पे? मैट्रिक्स से आउटर चैम्बर में पास होंगे, एंड दैट क्रिएट्स प्रोटॉन ग्रेडियंट। वो क्या जनरेट करेगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो इससे ओवरऑल क्या होगा? 2H प्लस जो उसका कॉन्सेंट्रेशन अब कहां पे इंक्रीज हो रहा है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, या फिर क्या बोल सकते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको आउटर चैम्बर में। ठीक है, अब वो 2H प्लस जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, उसका मतलब ये है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट जो जनरेट हुआ। टू ब्रेक दैट प्रोटॉन ग्रेडियंट दिस 2H प्लस ट्राई टू मूव अगेन टूवर्ड्स द मैट्रिक्स। वो कहां पे जाने की कोशिश करेंगे? वापस मैट्रिक्स में जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये हम जानते हैं कि इनर मेम्ब्रेन हैज मोर प्रोटीन एंड लेस लिपिड, सो इट इज सेलेक्टिव परमिएबल। तो यहां पे 2H प्लस जो है वो कहीं से भी नहीं जा सकता। 2H प्लस जो है वो प्रोटॉन आयन चैनल होगा, वहीं से ही जाएगा, एंड दिस ऑक्सीजोम इज नथिंग बट द प्रोटॉन आयन चैनल। वो क्या है? प्रोटॉन आयन चैनल। तो 2H प्लस यहीं से ही पास हो सकता है। कहां से? ऑक्सीजोम से ही। तो उसका मतलब ये है कि 2H प्लस जो पहले F0 देन F5 एंड F6 और फिर कहां से पास होगा? F1 पार्टिकल से वो पास होगा। लेकिन जब वो F1 पार्टिकल से पास होगा, एज वी नो दैट दिस F1 पार्टिकल और अ हेड ऑफ ऑक्सीजोम act as what? It act as ATPase enzyme, and that is because ADP will be converted into ATP. So every 2H plus when cross this proton ion channel or oxysome, it synthesizes what? One molecule of ATP. हर एक 2H plus के साथ एक एक ATP molecule जो है वो डेवलप होते जाएंगे, and around 30 ATP by oxidative phosphorylation form such a way। ठीक है, ऐसे 30 ATP जो है आउट ऑफ 36 जो है वो 30 ATP जो है वो सिर्फ किससे बनता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीजोम के थ्रू जो है वो डेवलप होंगे। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टा। डिटेल में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है दैट वी विल डिस्कस इन अ चैप्टर ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो सारी चीजें माइन्यूट जो है वो सारी चीजें याद रखना। अब हम इसका डिस्क्रिप्शन जो वो ले रहे हैं। ठीक है, चलिए। सो नंबर ऑफ क्रिस्टा डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर ऑफ क्रिस्टा कितने होंगे दैट इज डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा हो, बड़ा होगा, तो क्रिस्टा जो है वो ज्यादा होंगे। क्रिस्टी आर फिलीफॉर्म, मींस फिंगर लाइक इन एनिमल सेल एंड इट इज ट्यूबुलर इन प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में कैसे होंगे? ट्यूबुलर, और एनिमल सेल में कैसे होंगे? वो फिलीफॉर्म होंगे। Okay, crista are perpendicular, means at the right angle of longitudinal axis of mitochondria. While in case of cylindrical cell कौन कौन सा है? एक मसल सेल और न्यूरॉन। ठीक है, उसमें कैसे रहेंगे? पैरेलल, बट पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस इन न्यूरॉन्स एंड स्ट्राइटेड मसल्स। क्योंकि न्यूरॉन और स्ट्राइटेड मसल दोनों सेल कैसे हैं? सिलिंड्रिकल फॉर्म। ठीक है, ये सपोज देखिए, ये मैंने बनाया है एक्सॉन।
ठीक है, और ये मैंने बनाया है क्या, स्ट्राइटेड मसल्स। तो ये दोनों सेल कैसे हैं, सिलेंड्रिकल, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कैसा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिस्क लाइक होगा या फिर फ्लैटन होगा, और इसलिए उसमें क्रिस्टे भी कैसे होंगे, पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। ओके, क्रिस्टा हैव F1 पार्टिकल और एलिमेंट्री पार्टिकल और रेस्पिरेटरी असेंबली और ऑक्सीजोम। क्रिस्टा में कौन से पार्ट होंगे, क्रिस्टा में F1 पार्टिकल होगा। F1 पार्टिकल इज नथिंग बट द हेड ऑफ ऑक्सीजोम दैट विल रिमेन सस्पेंडेड इनटू द मैट्रिक्स एरिया ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया और इनर चैम्बर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, वो अभी हमने देखा, राइट। F1 particle were reported by two scientists, that is Ferrandis and Moran, and call them what, ETP, electron transport particle। जो F1 पार्टिकल जो है उसको ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल, लेकिन एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल नहीं थे, दे बेसिकली अ प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल, ठीक है। ओके, चलिए, क्योंकि मैंने देखिए इससे पहले हमने जो डायग्राम बनाया उसमें जो ETS हमने बनाया था वो इनर मेम्ब्रेन का पार्ट था, लेकिन वहां पे क्रिस्टी नहीं था, ठीक है। क्रिस्टा पार्ट जो हम किसको बोल रहे थे, एक बार वापस देख लेते हैं। देखिए क्रिस्टा पार्ट जो हमने किसको बोला था, देखिए ये मैट्रिक्स वाला, ये माइटोकॉन्ड्रियल, ये क्रिस्टा वाला पार्ट, देखिए ये जो है ये इनर फोल्ड जो डेवलप हो रहा है दैट इज क्रिस्टा। ये जो जहां पे क्रिस्टा नहीं है वहां पे क्या होगा, ETS, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और वहां पे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स जो है वो होंगे, ठीक है। चलिए, सो नंबर ऑफ क्रिस्टा डिपेंड ऑन साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एनिमल सेल में फिलीफॉर्म, प्लांट सेल में ट्यूबुलर। क्रिस्टा कैसे होंगे, परपेंडिकुलर टू द मेन एक्सिस, लेकिन पैरेलल होंगे किसमें, स्ट्राइटेड मसल्स एज वेल एज इन न्यूरॉन। क्रिस्टा हैज F1 पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल, रेस्पिरेटरी पार्टिकल या फिर ऑक्सीजोम। F1 पार्टिकल्स वर डिस्कवर्ड और आइडेंटिफाइड बाय टू साइंटिस्ट, दैट इज Ferrandis and Moran, called ETP, electron transport particle। number of F1 particle पर सेल कितने होंगे, 10,000 to 1 लाख पर माइटोकॉन्ड्रिया। एक माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीजोम होंगे विच विल प्रेजेंट ऑन द इनर मेम्ब्रेन, वो कितने हो सकते हैं, 10,000 to 1 लाख ऑक्सीजोम पर माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब, और एक सेल में एक से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। अब आप इसके अकॉर्डिंगली आप सोचिए कि अगर हम मसल सेल्स ऑफ इंसेक्ट की बात करें तो एक सेल जो है उसमें कितने हैं, 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया, और वो 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया में अगर हम ऑक्सीजन बात करें तो दैट वुड बी अ मिलियंस नंबर। F1 पार्टिकल्स इज मेड अप ऑफ, किससे बना है F1 पार्टिकल, बेस और F0 सब यूनिट विच इज रेक्टेंगल एंड इज एम्बेडेड इन अ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए जब हमने ये स्ट्रक्चर बनाया था कुछ इस तरीके से बनाया था, ठीक है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है और बीच में सेंटर, यहाँ पे क्या है, बेस, सो दिस इज द बेस, बेस इज अ पार्ट ऑफ इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टॉक, एंड लास्ट में क्या है, हेड। तो ये जो बेस जो है इट इज मेड अप ऑफ F0 पार्टिकल, किससे बना था वो, F0। सो बेस और F0 सब यूनिट विच इज रेक्टेंगुलर एंड इज एम्बेडेड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, राइट। ओके, स्टॉक which is made up of F5, F6 particle, and stalk lifts the head towards the matrix. And the third part is head or F1 subunit, which is about 100 angstrom in diameter. This is the larger part, and which will remain towards what? Towards the matrix, and it act as what? ATPase enzyme. So this is the F1, this one F5 and F6, and here we have F0. So base जो है that is rectangular, which is a F0, which is a part of inner membrane. Then F5 and F6 act as a stalk to lead the head towards the matrix, and F1 is made up of, F1 is considered as a head, which is actually a ATPase enzyme, right? तो ये हमने देखा ऑक्सीजोम। Okay, now माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज रिच इन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर Krebs साइकिल, क्योंकि Krebs साइकिल कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। इट ऑल्सो हैज प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है उसमें एंजाइम है कौन कौन से प्रोसेस के लिए, Krebs साइकिल। Krebs साइकिल जो है इट इज़ वेरी we can say that the complex process which form many series of amino acid which required many enzymes to perform this process। और एंजाइम सारे किससे बने होते हैं, प्रोटीन। इसके अलावा वहाँ पे क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है लिपिड का। एक दूसरी चीज़ भी आपको याद रखनी है कि अगर हम लिवर सेल की बात करें, मीन्स हिपेटोसाइट्स की, तो हिपेटोसाइट्स में Krebs साइकिल जो है उसके साथ एक और साइकिल जो है वो भी इससे क्लोजली कनेक्टेड है, दैट इज नोन एज ऑर्निथाइन साइकिल, राइट। और ऑर्निथाइन साइकिल और Krebs साइकिल जो है that is given by that information, or we can say that the sequential process of the biochemical reaction, that presentation was given by what, Krebs, Henslian. Okay,
माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ऑल्सो कंटेन डीएनए, अभी हमने देखा, और उस डीएनए में सी और जी कैसे होंगे, दैट पेयर इज मोर एंड सो हैज हायर डीनेचुरेशन टेम्परेचर। तो सी और जी ज्यादा अगर है तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो कैसे रहेंगे, ज्यादा, और वो अगर ज्यादा है तो उसका डीनेचुरेशन टेम्परेचर जो कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। एंड इट हैज 70s रिबोसोम, लेकिन 70s रिबोसोम नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल के लिए, लेकिन अगर हम मैमल्स की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 55s, राइट। 55s ribosomes are found in mammalian mitochondria, ये हम पढ़ चुके हैं, and are also known as mitochondrial ribosomes. Plastidoribosomes which is found in plastid, mitochondrial ribosomes found in the mitochondria. तो normally eukaryotic cell में mitochondria के अंदर जो ribosomes है that is 70s type, but if we talk about the mammalian cell then we have to consider 55s ribosome, right. उसके सब यूनिट भी हम पढ़ चुके हैं। DNA containing area ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए है, बट क्या वो डीएनए जो है वेदर इट इज अरेंज इन अ फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम और क्रोमेटिड, नो, आंसर इज नो, राइट। दैट डीएनए इज लाइक अ डीएनए विच इज फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए जो है इट इज नॉट ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, वहां पे हम टर्म क्या यूज करते हैं, न्यूक्लियोइड। तो सेम वे डीएनए विच इज फाउंड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इज इन न्यूक्लियोइड फॉर्म। कौन से फॉर्म में होगा वो, न्यूक्लियोइड फॉर्म में। DNA of mitochondria replicate in G2 phase. See, in case of a mitotic division, if we talk about the mitotic division, then mitotic division, this is the mitotic division. In mitotic division, first phase is interphase, right, in which cell prepare itself for the cell division. So first phase is what, interphase. In this interphase almost all material is become double, genetic material, cytoplasmic container, organelles, right, that become a double, and so that equally it will divide it into the next phase, and that next phase is nothing but the M phase. What it is called, M phase, right. Okay, so interphase is made up of three subphase. One is G1 phase, second is S phase, and third one is G2 phase. So G1, S and G2 together, these three phase is considered as an interphase. So mitochondria, we can say that the mitochondria or DNA of mitochondria replicate in G2 phase, which is the last phase of interphase, right. So in interphase, cell prepare itself for the division, and for that there is a doubling of every material, right, so that we can divide that material into the equal form of a daughter cell. M phase जो है that is made up of subphase, prophase, metaphase, anaphase, telophase, and lastly there is a cytokinesis, and ultimately cell will be divided. Okay, so DNA of mitochondria replicate in G2 phase to cytokinesis, and the replication is bidirectional. ठीक है, replication जो कैसा होगा, bidirectional. What is a bidirectional replication? Suppose DNA है तो DNA में एक जगह पे होगा origin of replication, और फिर replication जो दोनों साइड पे होगा, राइट, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइडायरेक्शनल रेप्लिकेशन। ठीक है, डिटेल में हम देखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। ओके, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज येलोइश एंड दैट इज ड्यू टू रिबोफ्लेविन। रिबोफोरिन नहीं है, रिबोफोरिन और रिबोफ्लेविन डिफरेंशिएट करो। रिबोफोरिन is a material or a glycoprotein which act as a glue to connect the ribosomes with the cisternae of ER. ठीक है, तो वो रिबोफोरिन था, this is riboflavin. This riboflavin is a yellow color protein, and that is why mitochondria seems to be a yellowish. Okay, mitochondrial matrix is rich in bivalent ion, that is manganese and magnesium. Mn+2 and Mg+2 ये दोनों आयन जो है वो मैट्रिक्स में बहुत ज्यादा है। और मैट्रिक्स में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, मैट्रिक्स इज रिलेटेड विद द Krebs साइकिल विच इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रोसेस, राइट, एंड विच रिक्वायर्ड सीरीज ऑफ एंजाइम। तो मैट्रिक्स में जो प्रोसेस हो रहा है Krebs साइकिल, और उसके लिए जो सीरीज ऑफ एंजाइम जो चाहिए, दैट एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर इट्स एक्टिवेशन, क्या क्या चाहिए उसमें, बाइवेलेंट आयन जो चाहिए। हम जब एंजाइम्स देखेंगे बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में, तब हम देखेंगे कि एंजाइम का मैक्सिमम पार्ट जो है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, बट टू एक्टिव दैट प्रोटीन इज रिक्वायर्ड कोफैक्टर और कोएंजाइम्स, राइट। उसमें हम ये आयन भी देखेंगे, मैंगनीज एंड मैग्नीशियम। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया इन मसल्स इज नोन एज सार्कोसोम। ये हम पढ़ चुके हैं कि व्हेनेवर वी यूज टर्म सार्को, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्म, वैसे ही सार्कोसोम मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द मसल सेल। All the mitochondria of cell together are termed as chondriosome,
एक सेल में सारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है टुगेदर दे आर नोन एज कॉन्ड्रियोसोम, टर्म याद रखना कॉन्ड्रियोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन, मतलब आउटर मेम्ब्रेन नहीं है सब उसको माइटोकॉन्ड्रिया में, दैट इज नोन एज माइटोप्लास्ट, उसको हम क्या बोलेंगे माइटोप्लास्ट। ओके, प्रोटीन लिपिड रेशियो इन माइटोकॉन्ड्रिया इज 2:1, तो उसका मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन जो कैसा है ज्यादा, लिपिड कंटेंट जो कैसा है कम। ओके, कॉन्ड्रियोस्फीयर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, देखिए यहां पे हमने क्या लिखा है, ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ सेल टुगेदर आर टर्म्ड एज कॉन्ड्रियोसोम, सारे माइटोकॉन्ड्रिया एक साथ क्या बोलते हैं उसको कॉन्ड्रियोसोम। लेकिन वो सारे माइटोकॉन्ड्रिया अगर एक साथ आ गए एंड दे फॉर्म अ बंच ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज नोन एज कॉन्ड्रियोस्फीयर। और ये कॉन्ड्रियोस्फीयर जो है वो किस में होगा, अ पर्सन विच इज सफरिंग फ्रॉम द स्कर्वी, स्कर्वी इज वी कैन से दैट इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है। ये डिसऑर्डर में अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो वो एक साथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे एंड दैट फॉर्म वी कैन से दैट द लार्जर रेट ऑफ द रेस्पिरेशन जो क्या हो जाएगा, हायर रेट पे हो जाएगा। और अगर रेस्पिरेशन हायर रेट पे हुआ तो वो रेस्पिरेशन जो क्या है, इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, बेसिकली डैमेज द सेल, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ कॉन्ड्रियोस्फोर। 70% ऑफ द टोटल सेल्यूलर एंजाइम, एक सेल में जो भी एंजाइम है उसके 70% जो है वो सिर्फ किस में है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो उसका मतलब ये है, इससे ये आप आइडेंटिफाइड कर सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उस पर कितनी ज़्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो होती होगी, ठीक है। चलिए, लास्ट जो पार्ट है दैट इज फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऑलमोस्ट देखिए सारे जो फंक्शन जो हम देख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार जो है डिटेल ले लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस एंड नॉन एज पावर हाउस ऑफ सेल, ये हम जानते हैं। ओके, दे हेल्प इन बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड, वो इसलिए क्योंकि जो रेस्पिरेशन जो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का, उसका जो सेकंड फेज है दैट इज क्रेब साइकिल। तो क्रेब साइकिल में सीरीज ऑफ एसिड्स बनता है एंड दैट एसिड्स आल्सो यूटिलाइज टू फॉर्म अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड का बायोसिंथेसिस जो है उसके साथ क्लोजली कौन रिलेटेड है, क्रेब साइकिल। हम ग्लाइकोलिसिस भी रिलेटेड है लेकिन ज्यादा कौन है, क्रेब साइकिल। तो इसलिए भी हम ये बोल सकते हैं इट हेल्प्स इन द बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड। दे रेगुलेट कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, सेल में कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन जो रेगुलेट होना बहुत जरूरी है। इफ कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज इन द सेल देन ऑल द मेम्ब्रेन विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल और द आउटर मेम्ब्रेन दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे ऑल बिकम मोर परमिएबल टू द आयन, और उससे क्या होगा, आयोनिक इम्बैलेंस। तो कैल्शियम आयन जो है दैट शुड बी मेंटेन। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ हीम। Heme is what? Heme is basically a ferric iron, right? Supposing that if we talk about the hemoglobin, right? This hemoglobin is nothing but the conjugated protein in which globin stand for protein and heme stand for ferric iron, right? So that heme, ferric iron formed by mitochondria. So it is a site where the heme iron will be formed. Okay. They help in thermogenesis. Thermogenesis means what? It we can say that it generate the heat, right? So mitochondria generate what, heat, right? So it also helps to maintain the body temperature or to maintain the homeostasis of cell as well. सेल का भी homeostasis maintain होगा, और सेल का हुआ तो टिश्यू का होगा, टिश्यू का होगा तो ऑर्गन का होगा, ऑर्गन का होगा तो ऑर्गन सिस्टम का, और ऑर्गन सिस्टम का हुआ तो एंटायर बॉडी का, और हम ये बोल सकते हैं कि होमियोस्टेसिस जो है वो मेंटेन होगा। ओके, सो थर्मियोजेनेसिस मीन्स व्हाट, to develop the heat. Okay, they also helps in vitellogenesis. Vitellogenesis is nothing but the yolk formation and that takes place at the time of formation of secondary oocytes, right? But लेकिन अगर हम बात करें तो जिसमें external embryonic development होगा, ऐसे organism जो है that required more amount of yolk, ठीक है। तो उससे पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है उसमें न्यूट्रिशन जो है वो यंग वन को मिलता रहा है। फॉर एग्जांपल रेप्टाइल्स, फॉर एग्जांपल एव्स, राइट, दे आर ओविपेरस। सो इन दैट टाइप काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म दे रिक्वायर्ड वाइटलोजेनेसिस प्रोसेस। ओके, नबरकन इज नथिंग बट द पार्ट वी कैन से दैट द ऑफ स्पर्म, मिडल पार्ट जो है स्पर्म का, हमने इनिशियली स्पर्म भी बनाए थे, ये सपोज जो है दिस इज अ हेड पार्ट, राइट, देन देयर इज अ मिडल पार्ट, दैट मिडल पार्ट हैज व्हाट, दिस काइंड ऑफ स्पाइरल व्हाट, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो पार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और वो पार्ट को हम क्या बोलेंगे, नबरकन। क्या बोलेंगे हम उसको, नबनकन। नबनकन इज अ स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन द मिडल पीस ऑफ व्हाट, ह्यूमन स्पर्म। तो ये जो हमने बनाया इट इज नथिंग बट द ह्यूमन स्पर्म,
और उसमें आप ध्यान से देखिए कि मिडल पीस जो है उसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक चीज़ हम ये पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे जो हेड रीजन है, दैट हेड रीजन हैज़ अ बिग वैक्यूल विच इज फॉर्म बाय द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और उसको हम क्या बोल रहे थे, उसको हम बोल रहे थे एक्रोसोम, राइट। एंड दैट एक्रोसोम हैज़ एंजाइम्स विच कैन पेनिट्रेट और डाइजेस्ट द मेम्ब्रेन ऑफ द secondary oocytes, right, and this enzyme is nothing but the hyaluronidase enzyme, right। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये सपोज आप समझ लो this is nothing but the membrane of, this is the membrane of what, this is the membrane of secondary oocytes, ठीक है। ओके, अब secondary oocyte में क्या होगा, this is the female nucleus and in sperm we have what, male nucleus। other than that in female cell, or we can say that in secondary oocyte there is a membranous bound structure like Golgi body, then mitochondria, then ER, then lysosome, right? All these organelles are present in what? In secondary oocytes. So only the thing which is transferred from sperm to the secondary oocytes is what? Only a nucleus। कौन सा पार्ट सिर्फ जा रहा है स्पर्म में से, यहाँ पे न्यूक्लियस जा रहा है। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द न्यूक्लियस टू द फ्रॉम स्पर्म टू द सेकेंडरी oocytes, तो उसके बाद ये सेकेंडरी oocyte जो है दैट बिकम जाइगोट। वो क्या बन जाएगा, जाइगोट, विच वुड बी द फर्स्ट सेल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। तो जाइगोट में जो ऑर्गेनल्स हैं वो ऑर्गेनल्स कहाँ से आए, जाइगोट में जो ऑर्गेनल्स जो थे दैट इज फ्रॉम द मैटरनल गैमेट। कहाँ से थे वो, मैटरनल गैमेट, ठीक है, क्योंकि जो स्पर्म से आ रहा है, स्पर्म इज अ पैटर्नल गैमेट, तो स्पर्म से जो आ रहा है दैट इज ओनली अ न्यूक्लियस, हाँ या ना। तो सारे जो ऑर्गेनल्स हैं जो जाइगोट में पड़े हुए हैं वो कहाँ से आए, फ्रॉम द सेकेंडरी oocytes, और सेकेंडरी oocyte जो है दैट इज अ मेल गैमेट, है ना। ओके और इसलिए एक चीज याद रखो कि हम में, आप में, हम सब में जो ऑर्गेनल्स जो है दैट ऑलवेज कम फ्रॉम द मैटरनल साइड, नॉट फ्रॉम द पैटर्नल साइड, ठीक है। और इसलिए अगर हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की बात करें, किसकी, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ऑलवेज कम फ्रॉम द मैटरनल पार्ट। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर इनहेरिटेंस की बात करें तो न्यूक्लियस जो है वो कैसे डेवलप होगा जाइगोट का, बाय द फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस, मैटरनल एंड पैटर्नल। तो न्यूक्लियर अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें या फिर जेनेटिक इनहेरिटेंस की बात करें, दैट जेनेटिक इनहेरिटेंस कम्स फ्रॉम द बोथ द पेरेंट्स, बट साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस which made up of a different kind of organelles, it is always from the maternal gamete। याद रखना ये important thing है। okay, helps in energy transformation, right, bioenergetics। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो इट ऑल्सो हेल्प्स इन द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो देखिए, रेडॉक्स चेन में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी दैट विल यूटिलाइज टू फॉर्म द प्रोटॉन, और वही प्रोटॉन जब आयन चैनल से गया दैट फॉर्म व्हाट, एटीपी, ठीक है। इट हेल्प्स इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसी से साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो है वो हो सकता है, या फिर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो है उससे माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटेड है। सारे ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस से होते हैं। ओके, सो हियर वी आर डन विद द माइटोकॉन्ड्रिया। थोड़ा लेक्चर जो है वो लंबा था, लेकिन सारे डिटेल्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपने ये लेक्चर जो है एंजॉय किया होगा। इफ यस, यू कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन विथ योर फ्रेंड्स, राइट। और एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपको मुझसे, मतलब विकास त्रिवेदी से, विकास सर से अगर पढ़ना अच्छा लग रहा है तो हमारी टीम में बहुत और भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके बेटर फ्यूचर के लिए। सो प्लीज़ हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए, एप्लीकेशन जो हमारा अद्वित अचीवर्स प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कीजिए। हमेशा दौड़ते रहें, मेहनत करते रहें, सक्सेस के लिए एक्टिव रहे, ठीक है, क्योंकि अगर शांति से सोना है तो जागते रहो। विद्यार्थी देवो भव। स्टे ट्यून। जय भारत। लव यू ऑल।